Hello to everyone and welcome back to my channel. Myself Manisha Vaidya. I hope you all are doing good. Today in this learning session, I will narrate a story in brief which is taken from 10th standard English Bal Bharti textbook. The title is 3 Questions. This lesson is written by Leo Tolstoy. His lifespan was from 1828 to 1910. He was a Russian writer, a very famous author. His notable works include War and Peace, The Kingdom of God is Within You, Resurrection, etc. He achieved literary acclaim in his 20s with his semi autobiographical trilogy Childhood, Boyhood, and Youth. So, this was the brief introduction of our writer Leo Tolstoy. Now, moving toward the story. The story is about a king who always wanted to be a successful ruler. A thought emerged into his mind that a person can become a successful person only if he never fails. And for that reason, he started finding out answers for the 3 questions which were emerged into his mind. And the questions were: number one, what is the right time to begin something? Number second, who are the most important people to turn to and to avoid? Number third, what is the most important thing to do? राजा के मन में 3 सवाल आते हैं क्योंकि वो एक अच्छा रूलर बनना चाहता है। तो उसे ऐसा लगता है कि ये 3 सवालों के जवाब अगर मुझे मिल जाए तो मुझे कोई भी एक अच्छा रूलर, एक अच्छा किंग बनने से नहीं रोक सकता। और वह सवाल क्या होते हैं? पहला सवाल कि कोई भी काम करने का उचित समय यानी सही समय कौन सा होता है। दूसरा सवाल ये आता है राजा के मन में कि हमारे ज़िंदगी में कौन से लोग महत्वपूर्ण होते हैं, ज़रूरी होते हैं। नंबर तीसरा, ऐसा कौन सा काम है जो राजा को प्रायोरिटी बेस पर करना चाहिए या उस पर ध्यान देना चाहिए। अब राजा क्या करेगा इफ़ ही अलोन फेल्स टू फाइंड आउट द आंसर्स? As we always see in cinemas and serials etc., the king does एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। राजा हमेशा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता है इफ़ ही अलोन फेल्स टू फाइंड आउट द आंसर्स। वो प्रजा की मदद लेता है। एंड विद द हेल्प ऑफ हिज नोबल मैन, जो किंग है एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देता है उसके राज्य में। He made a proclamation throughout his kingdom. He sent the messages to many wise people. He proclaimed about the questions, the 3 questions, and promised the people, his subjects, to give a great amount of money as a reward to anyone who would answer the 3 questions. राजा प्रोक्लेमेशन करता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देता है उनके मैसेंजर के ज़रिए। उन 3 सवालों को प्रजा के लोगों में वो सवाल बताए जाते हैं और राजा अनाउंस करता है कि जो कोई भी इन 3 सवालों के जवाब अच्छी तरीके से देगा उसे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा यानी रिवॉर्ड मिलेगा। द किंग गॉट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज सब्जेक्ट। Many wise, intelligent men came forward to give the answers to the 3 questions. In response to the first question, पहला सवाल हमारा क्या था कि कौन सा समय उचित होता है कोई भी काम करने के लिए। And in response to the first question, one said that the king must prepare a proper timetable beforehand and must efficiently follow it. पहला जो पर्सन होता है वो कहता है कि राजा को ना पहले से ही एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और फिर उस टाइम टेबल के हिसाब से राजा को हर एक काम को अंजाम देना चाहिए या फिर उस काम को इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट करना चाहिए। Another person said the king should do whatever he thinks necessary at that moment. दूसरा व्यक्ति कहता है कि उस वक्त राजा के मन में जो ख्याल आता है ना वो राजा को कर देना चाहिए। तीसरा व्यक्ति क्या कहता है? द अदर सेड द किंग शुड ऑलवेज कंसल्ट वाइज मेन एंड टेक द एक्शंस अकॉर्डिंगली।
तीसरा व्यक्ति उसी सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से देता है कि राजा को हमेशा जो चतुर लोग होते हैं, जो बुद्धिमानी लोग होते हैं, उनका सलाह मशवरा लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लोग जो है ना अच्छी सलाह देते हैं राजा को, और राजा को जो भी काम होता है वो अच्छे तरीके से बन जाता है. नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन. अब दूसरा सवाल का वक्त आ जाता है. एंड व्हाट वाज द सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट, कि कौन से व्यक्ति हमारे ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं. So in response to the second question, people were giving apex importance to the priest. Then some of them said soldiers are very important. Other people said counselors are very important. और कुछ लोगों ने क्या कहा, वॉरियर्स बहुत ज़रूरी होते हैं. और उनमें से भी कुछ लोगों ने कहा जो डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर्स, वो बहुत ज़रूरी होते हैं. एंड इन रिप्लाई टू द थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, क्या था हमारा, कि ऐसा कौन सा काम है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको प्रायोरिटी देनी चाहिए. इन रिप्लाई टू दिस थर्ड क्वेश्चन, many wise men gave importance to science. साइंस होता है विज्ञान की जो बातें होती हैं, उनका ऐसा मानना था कि राजा को विज्ञान की तरफ यानी साइंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. तो कुछ लोगों ने कहा वॉर, जो युद्ध होते हैं ना वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो प्रजा को संभालते हैं और राजा का राज्य भी संभालने में काम आते हैं. तो ये वॉर जो होते हैं उन्हें इम्पोर्टेंस देना चाहिए. और कुछ लोगों ने क्या कहा, रिलीजन महत्वपूर्ण है, या जो वर्शिपिंग होती है, भगवान की वर्शिपिंग होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसका अगर आशीर्वाद हुआ तो ये साइंस एंड ये वॉर सब कुछ ऑटोमेटिकली हम गेन कर सकते हैं. So students, the scene was like as many heads as many opinion. जितने लोग उतनी बातें, उतने आंसर्स लोग राजा को देना शुरू कर दिया. Different people answered differently, but unfortunately no one was rewarded as their answers were not satisfying. The king was not at all satisfied with anybody's answer, though he got a huge response from the people. Huge response means what, student? Many learned men attempted to please the king by giving satisfying answer. बहुत सारे पंडित, चतुर और बुद्धिमानी लोग सामने आ गए थे राजा के, कि मैं आंसर दूंगा, मैं राजा को खुश करूंगा, और राजा बदले में मुझे क्या देगा, एक ग्रेट अवार्ड, बहुत बड़ा रिवॉर्ड मुझे मिलेगा. अब राजा क्या करता है, वो तो निराश हो गया ना, क्योंकि वो किसी के भी बातों से सहमत नहीं है, कंफ्यूज हो गया हमारा जो राजा है. देन द किंग डिसाइडेड टू गो एंड मीट द हर्मिट. अब ये हर्मिट क्या होता है, हर्मिट एक ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा सॉलिट्यूड में रहता है और रिलीजियस डिसिप्लिन को मानने वाला होता है. यानी बहुत उसका जो लाइफ होता है ना, उस पर अध्यात्म का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव होता है, और जो सादगी भरी ज़िंदगी यानी सिंपल लिविंग पर यकीन मानने वाला होता है. अब वो डिसाइड करता है किंग कि मैं हर्मिट के पास जाऊंगा. और ये हर्मिट कहाँ रहता है, हर्मिट यूज्ड टू लिव इन नियर बाय फॉरेस्ट और वुड. बट द प्रॉब्लम वॉज दैट द हर्मिट वुड ओनली मीट कॉमन पीपल, and the king came to know about it. हर्मिट से मुलाकात करने का सिर्फ एक ही ज़रिया होता है, कि वो कॉमन लोगों से ही मुलाकात करता है. राजा को ये पता चलता है कि हर्मिट जो है वो जंगल में रहने वाला है, एक छोटी सी झोपड़ी है उसमें वो रहता है, और सिर्फ कॉमन लोग यानी सिंपल ऑर्डिनरी लोगों से वो मुलाकात करता है. अब ये राजा के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, क्योंकि राजा कैसा होता है, एक रॉयल उसकी लिविंग होती है. अब वो क्या करेगा, जब राजा को पता चल गया है तो राजा
सिंपल क्लोथ्स वेयर करेगा, यानी जो उसकी जो रॉयल वेयरिंग्स होती है वो उसे दूर करेगा और जो सिंपल से सिंपल क्लोथिंग्स होती है वो पहनेगा, राइट। अब द किंग डिसाइडेड टू पुट ऑन द सिंपल ड्रेस as the commoners do. He went to meet him mounted on a royal horse. His guards were with him. वो निकल पड़ता है हर्मिट से मिलने के लिए, सिंपल ड्रेसिंग पहन लेता है वो, और एक रॉयल घोड़ा होता है उसके पास, उस पर वो सवार होता है। और उसके साथ कौन होते हैं उस वक्त? उसके गार्ड्स, यानी उसके जो सिपाही होते हैं वो उसके साथ होते हैं। When he was near to hermit's place, he dismounted from the horse, left his guard behind. He approached him as a commoner. He saw the hermit was digging the ground which was in front of his hut. राजा क्या करता है, जैसे ही वो हर्मिट की जो झोपड़ी होती है, जो हट होता है, उसके करीब जाता है तो घोड़े से उतरता है, क्योंकि कॉमन पीपल जो होते हैं वो घोड़े पर, जो रॉयल घोड़ा होता है उस पर सवार होकर नहीं आते हैं। तो राजा उस घोड़े को अपने सिपाहियों के पास छोड़ देता है और उन सिपाहियों को भी पीछे छोड़ देता है और अकेले निकल पड़ता है हर्मिट से मुलाकात करने के लिए। और हर्मिट उस वक्त क्या कर रहा होता है, जो उसके झोपड़ी है उसके सामने एक पिट या एक बेड वहाँ पर क्रिएट कर रहा होता है। The king humbly asked him his 3 questions. अब मुलाकात हो गई है उन दोनों की, और किंग जो है हमारा वो उसे तीन जो सवाल होते हैं वो पूछता है, बार बार पूछता है। He asked him his 3 questions many times, but hermit was completely engrossed into his work. लेकिन hermit तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, hermit completely पूरी तरीके से बिजी है उसका काम करने में, दैट इज डिगिंग द पिट। द किंग देन सॉ द हर्मिट वॉज वेरी टायर्ड, सो ही ऑफर्ड हिम हिज हेल्पिंग हैंड टू डिग द पिट फॉर अ वाइल, एंड द किंग अगेन आस्क्ड द 3 क्वेश्चंस टू द हर्मिट, बट हर्मिट gave no response to his questions. After some time, Hermit said to king, "Here comes someone running." राजा क्या करता है, राजा हर्मिट को कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, और राजा उसके हाथ से जो वो टूल्स होते हैं जो डिगिंग करने में मदद करते हैं वो टूल्स ले लेता है और हर्मिट की मदद करता है। वो काम करते करते राजा फिर हर्मिट से वही सवाल पूछता है, लेकिन हर्मिट उसके सवालों का जवाब, राजा के सवालों का जवाब नहीं देता है। कुछ देर बाद हर्मिट राजा को कहता है, देखो कोई यहाँ पर भाग कर आ रहा है। नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स, व्हाट वाज दैट केम रनिंग। ये कौन है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ही वॉज अ बियर्डेड मैन, ही गॉट अ वुंड ऑन हिज स्टमक एंड इट वॉज ब्लीडिंग सीवियरली। He fainted and fell to the ground. ये कौन होता है, एक सिंपल सा दिखने वाला बियर्डेड मैन होता है जिसके पेट पर एक चोट लगी होती है, बहुत गहरी चोट होती है, और बहुत बुरी तरीके से उस चोट में से, उस ज़ख्म में से जो कि उस पर उसके पेट पर लगी होती है, उसमें से खून बहता है और वो बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाता है। जैसे ही वो इन दोनों के करीब आता है, राजा और हर्मिट के पास, वैसे ही वहाँ पर वो फेंट हो जाता है और बेहोश होकर वो गिर जाता है वहाँ पर। द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द वुंड्स ऑफ द बियर्डेड मैन till the bleeding stopped. The man felt better. He asked for fresh water. The king gave him the water. राजा क्या करता है, उसका जो ड्रेसिंग वगैरह होते हैं ज़ख़म पे जो करते हैं वो करता है। थोड़े वक्त बाद उस ज़ख्मी इंसान को अच्छा लगता है और उसके बाद में वो राजा से दरख्वास्त करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे पानी दो, और राजा क्या करता है, उसे फ्रेश वाटर ऑफ़र करता है। आफ्टर दैट द हर्मिट एंड
the king lifted that wounded man and took him to the hermit's hut. The man fall asleep on the bed. Now the king was also tired because he was working hard since morning. So he also laid on the floor and slept. He had a sound sleep that day. The next morning, the king woke up and he found that the bearded, that is the else you can see wounded man, was gazing him intently. The man then confessed to the king that he knew who the king was and that the king had executed his brother and seized all his property. King उसकी सेवा करता है, राजा उसकी सेवा करता है और बिल्कुल उसे जो भी चाहिए वो प्रोवाइड करता है और उस रात जो है राजा उसी के बगल में सो जाता है, बिल्कुल एक कॉमनर की तरह, एक कॉमन व्यक्ति की तरह. और दूसरे दिन क्या होता है, राजा उठता है और वो ये देखता है कि ये जो वुंडेड मैन है उसको बहुत इंटेंटली घूर रहा है या गेज कर रहा है. और ये जो वुंडेड मैन होता है वो कन्फेस करता है राजा को थोड़ी देर बाद कि वो राजा को जानता है और राजा के बारे में ये भी जानता है कि उसने उसके भाई को मारा है और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो जब्त कर ली होती है राजा ने. He had come to kill the king. He followed the king to take revenge on him as the king put his brother to the death. He explained the king now he had followed him. He had hid in a bushy way in the jungle, but found the king had not returned for a long time. He came out of his hide. Just then he got wounded by the king's bodyguard. आगे वो ये भी बताता है राजा को कि वो उसे मारने आया है. क्यों? क्योंकि उसे राजा का बदला लेना है. क्यों बदला लेना है स्टूडेंट्स? क्योंकि उसने उसके भाई को मारा है और उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है, सीज कर लिया है. लेकिन आगे वो कहता है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया लेकिन तुम मुझे दिखाई नहीं दिए. मैं एक बुशी वे में छुपा हुआ था और तुम्हारे रिटर्न जर्नी का मैं इंतज़ार कर रहा था लेकिन तुम नहीं आए. मैं जैसे ही उस बुशी हाइड से बाहर निकला, उस बुशी एरिया से मैं बाहर निकला तो तुम्हारे सिपाहियों ने मुझ पर अटैक किया और मेरे पेट पर एक बहुत गहरी जख्म लग गई. द बियर्डेड मैन आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस. अब ये जो वुंडेड मैन होता है वो राजा को क्या कहता है कि मुझे माफ़ कर दो. क्यों माफ़ कर दो? राजा को एकदम से वो अचानक क्यों बदल गया? क्योंकि वो जानता था कि अगर वो राजा ने उसे नहीं बचाया होता तो आज वो मर जाता. As he would have died if the king had not saved his life. He promised the king that he will serve him till his last breath. वो राजा को क्या प्रॉमिस करता है, क्या वायदा करता है कि इसके बाद अगर आप मुझे माफ़ करते हो तो इसके बाद मैं आपकी सेवा में सदैव हाजिर रहूँगा, मैं आपकी सेवा करूँगा मेरी आखिरी सांस तक. The king was surprised, but at the same time he was happy also that he made peace with the man who was actually his enemy and promised to give his property back. राजा को एक प्रकार से वो सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन उसी वक्त राजा को एक खुशी भी होती है उसके माइंड में कि मैंने ये जो मेरा शत्रु है उसे मैंने जीत लिया, उसके साथ मैंने रिकंसाइल कर दिया. और वो उस ज़ख्मी इंसान को वायदा करता है, प्रॉमिस करता है कि इसके बाद मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूँगा और जो भी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे भाई की छीनी है वो मैं तुम्हें वापस कर दूँगा. Now the king again went to the hermit's hut. He approached the hermit. The hermit was sowing seeds in the ground.
that he had been digging the day before. The king requests the hermit to respond to his three questions. The hermit broke his silence and said, "You have already been answered." Hermit explained the king that his deeds are his answers. अब ये हर्मिट को वापस से राजा सवाल पूछता है और हर्मिट क्या कहता है? फाइनली हर्मिट अपना जो साइलेंस है, अपनी जो चुप्पी है वो तोड़ देता है और वो कहता है कि तुम्हारे आज की जो कर्म है ना, वही तुम्हारे आंसर्स है, वही तुम्हारे जवाब है, तुम्हें दूसरी तरीके से आंसर देने की ज़रूरत नहीं है. द हर्मिट सेड दैट इफ़ यू हैड नॉट डग द पिट as a help to me, he would, means the wounded man, he would have been killed by the bearded man. राजा क्या कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती इस पिट को डिग करने में, तो ये जो wounded man है, ये जो bearded man है, वो तुम्हें मार देता. So the right time was his action to help hermit. So जो पहला सवाल है कि कोई भी काम को करने के लिए उचित समय कौन सा होता है, तो वो वक्त होता है जो तुम्हारे हाथ में है. यानी उस वक्त जब उसने हर्मिट की मदद की वो उचित समय था कि कोई काम को अंजाम देने के लिए. बाय हेल्पिंग हर्मिट ही एस्केप द अटैक. So the most important person that time for the king was hermit himself, and to do him good was the king's important business. जो दूसरा सवाल होता है कि कौन सा व्यक्ति इम्पॉर्टेंट होता है तुम्हारे लिए, तो हर्मिट कहता है कि जब तुम मेरे पास आए तो उस वक्त तुम्हारे लिए मैं इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था, क्योंकि अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती, तुमने मुझसे मुलाकात नहीं की होती, तो शायद से ये अटैक जानलेवा होता. जो ज़ख्मी इंसान है, जो अटैक करने वाला था, वो जानलेवा भी साबित हो सकता था. और जो तुमने मेरे लिए मदद की है ना इस पीठ को डिग करने में, वो इम्पॉर्टेंट बिजनेस तुम्हारा था, वो इम्पॉर्टेंट काम तुम्हारे लिए उस वक्त था. अगर वो तुम काम करने में बिज़ी नहीं होते तो शायद से वो बियर्डेड मैन, वो वुंडेड मैन तुम्हें जान से मार देता. He saved the life of the bearded man. अब दूसरे नज़रिए से इसी इंसिडेंट को देखा जाए तो क्या है? He saved the life of the bearded man and thus made peace with him, or you can say with his enemy. एक प्रकार से जब वो हर्मिट के पास गया तो हर्मिट उसके लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन था, हर्मिट को मदद करना उसके लिए इम्पॉर्टेंट काम था. और जो समय होता है, जो प्रेजेंट का समय होता है, वही इम्पॉर्टेंट किसी भी इंसान के लिए रहता है. ऐसा कौन कहता है? हर्मिट. वही सवाल का जवाब हर्मिट दूसरी तरीके से क्या दे रहा है कि जब तुमने उस वुंडेड मैन की मदद की, उसकी मरहम पट्टी की या उसकी देखभाल की, तो एक प्रकार से तुमने उस इंसान को जीत लिया. यानी उस वक्त वो वुंडेड मैन तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत इम्पॉर्टेंट था. उसकी सेवा करना तुम्हारा फ़र्ज़ था, यानी उसकी सेवा करना तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग था या फिर काम था. सो द हर्मिट रिस्पॉन्डेड टू द किंग दैट the right time to do anything is the present, because that time you have power to do any kind of act or any kind of action. And the most important person in our life are the people we meet, and to do good with them is the most important business to do. आगे हर्मिट क्या कहते हैं कि कोई भी काम करने का उचित समय प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये जो वर्तमान होता है, ये जो प्रेजेंट होता है, उसमें इंसान के पास बहुत पावर होती है. ना तो आप फ्यूचर में कुछ कर पाते हो, ना ही पास्ट में कुछ कर पाते हो. और उसी प्रेजेंट में जिन जिन लोगों के साथ आपकी मुलाकात होती है, वो लोग महत्वपूर्ण होते हैं, और उन लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना, उन लोगों का मन जीतना, वो तुम्हारा इम्पॉर्टेंट काम है या फिर बिजनेस है. सो दिस वॉज आवर स्टोरी स्टूडेंट्स. आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी.
So here we are done with our today's session. I hope you understood the lesson properly. If you like the way I explain the topic, then please subscribe my channel. Do share it, like it, and comment it. Till then, bye bye, and do take care of yourself.